such a distinguished gathering of media professionals who play a vital role in shaping the public perception and disseminating accurate, timely information. On behalf of NTPC Korba, I extend my sincere gratitude for your continued support and engagement with us. At NTPC, we firmly believe that the media is not just a channel of communication, but a valued partner in our journey of growth and nation building. Media licensing, therefore, is not merely an activity for us, it is a responsibility grounded in transparency, trust, and mutual respect. Allow me to briefly highlight the strengths and vision of NTPC Limited. NTPC, established in 1975, has grown to become India's largest integrated power utility, powering nearly 1/4 of nation's electricity. With an installed capacity of around 88 plus gigawatt, NTPC has evolved from conventional thermal power generator into a diversified energy major with presence across the entire energy value chain, spanning conventional and renewable power generation, coal mining, power trading, e-mobility, and emerging area like green hydrogen. As a Maharashtra company under the Ministry of Power, Government of India, NTPC stands for excellence in engineering, operational efficiency, safety, and sustainability. Our plants consistently perform above national average, reflecting our unwavering commitment to reliability and environmental stewardship. Looking ahead, NTPC is firmly aligned with India's clean energy transition. We are targeting 60 gigawatt of renewable energy capacity addition by 2030 and actively investing in advanced technologies such as battery storage energy, carbon capture, nuclear energy, and green chemicals. Our vision is clear: to be the world's leading power company, accelerating India's growth and energy transition. At the core of our success are our people, guided by the philosophy of people before PLF. We continue to build a diverse and collaborative and future-ready workforce. At the same time, our commitment extends beyond power generation. Through our CSR initiatives, we are actively contributing to the healthcare, education, skill development, and community empowerment in the region where we operate. Coming to Korba, it is one of the NTPC's flagship power station and cornerstone of power generation in the central region. Over the years, NTPC Korba has earned reputation for high operational performance, reliability, and adherence to best practices in safety and environmental management. The station has consistently contributed significantly to meeting the power demand of multiple states, thereby supporting regional and national growth. Beyond generation, NTPC Korba has been deeply committed to the socio-economic development of the surrounding communities. Through various CSR initiatives, we have made meaningful contributions in the area of healthcare, education, infrastructure development, skill enhancement, and livelihood generation. Our efforts are aimed to include inclusive growth and improving quality of life for people in the region.
We are also focused on sustainable operation at Korba with continuous efforts towards emission reduction, efficient resource utilization, and environmental protection. Adoption of advanced technologies and adherence to stringent environmental norms. Friends from the media, your role in bringing these efforts to the forefront is invaluable. We deeply value your partnership in communicating our initiatives, achievements, and commitment to the public. We remain committed to ensuring openness, responsiveness, and accuracy in all our interactions with you. In today's fast-paced information environment, credible and responsible communication is more important than ever. We look forward to strengthening our engagement through regular interactions, transparent dialogues, and mutual cooperation. I would also like to assure that NTPC Korba will continue to extend full support to the media fraternity, whether through timely dissemination of information, facilitating interaction, or providing insight into our operation. Before I conclude, I once again thank you for your presence and continued cooperation. Together, let us work towards informed communication and contribute meaningful to the nation building. Thank you. देरी कैसे हो रही है? क्या उसमें फ्लाई एश डाइट के जमीन का कोई इशू आ रहा है? एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज सर, जो अभी आपने जो CSR का जो डिस्प्ले किया डेटा, उसमें थोड़ा मुझे डिफरेंस दिख रहा था सर। आपने यूटिलाइजेशन का जो परसेंटेज है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो बताया 190। पहली बात तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो अल्ट्रा एडवांस्ड सुपर क्रिटिकल यूनिट आना था, जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहल था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BHEL को 1200 करोड़ के आसपास राशि मुहैया करवाया था, बजट सैंक्शन हुआ था। फॉर द टाइम में किसी कारण से दैट वाज बीइंग डेल्ट बाय सेपरेट ग्रुप, BHEL और NTPC जॉइंटली बनाने थे। फॉर द टाइम में अभी तक कुछ आया नहीं है, सो इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं। वो ग्रुप से अभी कुछ भी प्रोग्रेस हुआ नहीं है, कुछ के हद तक R&D हुआ था, बट अभी बंद पड़ा हुआ है। रिगार्डिंग दैट आस इन्फ्लेशन की जो बात कर रहे हैं, 105% जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली NH और दूसरा एरिया में, और कुछ परसेंट हम जब आस डाइट रेज करते हैं उसमें पट्रेसिंग में यूज करते हैं। जब रेज करते हैं आस का कुछ लेयर डालते हैं, उसके ऊपर कुछ मिट्टी का फिर आस का डाल के वो पंड रेज करते हैं, उसी के चलते वो 119% हुआ। सर आपको दिखा रहा था कि हम लोगों ने कितना यूटिलाइजेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि टाउनशिप में जो यमुना विहार है उसको डिसमेंटल किया गया है सर, तो क्या वहाँ पे, हालांकि NTPC की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्या वहाँ पे सोलर प्लांट डालने का प्लान है? अगर है तो और क्या डिसमेंटल किया जाएगा और कितने पेड़ काटे जाएंगे अगर है तो? अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कुछ मकान है सो डिलैपिडेटेड कंडीशन में थे, जिसका कि हम लोगों ने डायरेक्शन करके आइडेंटिफाई किया था कि इनको डेमोलिश करेंगे, तो वो हम अभी डेमोलिश कर रहे हैं। सोलर आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे अभी निकट भविष्य में ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। हम लोगों ने एक लिमिटेड स्कोप के साथ केवल जो पुराने हो गए क्वार्टर उनको तोड़ा है। सर मेरा एक सवाल है, लगभग 40 साल से ऊपर हो गए सर आपके प्लांट को, लेकिन आज तक एक डैम का निर्माण नहीं हुआ है, एक डैम का। और इसके लिए पहले भी जो है चर्चा हो रही थी कि नदी के उस तरफ, घोड़ा घाट के उस तरफ में डैम बनना है। जब आप राखड़ निकालेंगे तो डैम को स्टोर कहाँ करेंगे? और डैम स्टोर कर रहे हैं और राखड़ डैम फट जाता है सर, हर साल की स्थिति है। अब आपके PRO को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाती, बात भी नहीं करती, ना जानकारी नहीं देती, तो ये तो बहुत बड़ा गैपिंग है ना सर।
और दूसरी बात ये है सर, पॉल्यूशन की बात है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं आप लोग की, बहुत ही स्वच्छ सुंदर और शुद्ध हवा। आपके यहाँ का जो ट्रेन दीपका से गेवरा से जो एनटीपीसी आती है वो तो खुद डीजल वाली आती है साहब, उसको कब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी करवाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देखिए, आप ट्रेन जो जाती है एनटीपीसी से वो पूरा जो है डीजल वाली जाती है। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करें। पहला क्वेश्चन ये है सर, आपका लगभग 41 साल हो गए प्लांट को, आज तक एक डैम का निर्माण नहीं किए हैं आप लोग। आ गया वो क्वेश्चन, मैं जी, आंसर जी, करता हूँ। डैम हम लोग नहीं बनाते, हम लोग एज डाइक बनाते हैं। हाँ, एस डैम की ही बात कर रहा जी हूँ, आप जी, समझदार पता है, हैं। आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी जी। हमारा स्टेज 1 जो था ना, उसके लिए 4 पारा एज डाइक बनाया गया था, जिसका अभी हम लोगों ने प्रस्तुति में दिखाया था कि वो उसको हमने परित्यक्त कर दिया है और उसके ऊपर पूरा फॉरेस्ट कवर लगा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने धनराज में एज डाइक बनाया था, ठीक है। वो धनराज डाइक अभी प्रचालन में है और हम लोग वहाँ पे ऐश अपना डंप कर रहे हैं। और दूसरी बात, केवल डंप ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसो वित्तीय वर्ष 24-25 में 119% ऐश यूटिलाइज किए थे, यानी कि हमने जितना जनरेट किया उससे ज़्यादा हमने यूटिलाइज किया। और वित्तीय वर्ष 25-26 में हमने 109% यूटिलाइज किए। तो हमारे पास डैम है, पहली बात, जो कि धनराज में है वर्तमान में, और हम जितना जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ये दोनों जानकारी आपको सब। पीआरओ वाली बात पूछा था सर, जवाब दीजिए आप। जनसंपर्क अधिकारी ना फोन उठाती, ना बात करती, नहीं मीडिया वाले से, न कभी जाओगे तो क्या मतलब है ऐसे मीडिया वाले को रखने का? ये मेरा जानना चाहता नहीं, हूँ। ठीक है, जो भी जानकारी होगी भविष्य या में उनके जगह में कोई दूसरा कोई को रखिए जो बात करे, संवाद करे। भाई कोई घटना कुछ दुर्घटना होता है तो हम किससे संपर्क करें सर? अब सीएम साहब से, जीएम साहब से तो संपर्क नहीं कर सकते, तो मीडिया का काम क्या है सर? उनसे जाके उनका वक्तव्य लेना, इतना ही तो काम है। कौन सा पैसा लेने के लिए जाते हैं? आपकी बात से एग्री करते हैं। मीडिया हमारे लिए वो माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जिसके थ्रू हम लोग समाज अपना जो औद्योगिक क्षेत्र है किसी में तो अपने जो वहाँ पे वृक्षारोपण बहुत अच्छा काम है। क्या उसमें बैम्बू यानी बांस के नए पौधों को वहाँ पे प्लांटेशन कराएंगे? उससे क्या होगा कि साहब बांस से हमारे जो यहाँ पे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काम मिलेगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे, नवाचार होगा। क्या एनटीपीसी कोरबा इसमें ध्यान देगा? मैं कंसर्न ऑफिसर से आग्रह करता हूँ। ट्रेन वाला नहीं बताया यार। आप मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सिर्फ बांस के पौधे लगाने की बात कर रहे हैं? जहाँ पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, हम लोग विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगा रहे हैं, मावला, करण, ये, और उसके साथ साथ में बम्बू ट्री भी है। इनफैक्ट धनराज में जब हमने 2 साल पहले प्लांटेशन किया उसमें भी बम्बू ट्री है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी प्लांट्स। रिस्पेक्टेड सीनियर सर, पिछले 37 सालों में वन बाय वन पिछले 37 सालों में आपने एनटीपीसी को जो अपनी सेवाएं दी, वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग से लेकर अभी सीजीएम जैसे गरिमामय पद पे आप आसीन हैं। इस दौरान आपने जो भी उतार चढ़ाव देखे होंगे, अभी आपके कार्यकाल को मात्र 10 माह शेष हैं जो मेरी जानकारी। आपकी क्या प्रायोरिटी है सर? आप क्या करना चाहेंगे? एक दूसरा, एनटीपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उसका पर यूनिट एक्सपेंसेस क्या है, और आप जो सप्लाई करते हैं वो किस रेट पे करते हैं? प्लीज। हमारा जो सप्लाई रेट है वो बीपीए के हिसाब से चलता है। हर स्टेट का अलग अलग बीपीए है, उसी हिसाब से चलता है। और वो रेगुलेटरी कमीशन फाइनल करता है जो O&M कॉस्ट देने के लिए। रहा मेरा क्या लिया है, यहाँ पे GM O&M है, वो प्लांट का रिलायबिलिटी सेफ्टी देखते हैं। मेरा काम यह है कि एनटीपीसी का जो नाम है, ब्रांडिंग है, और एनटीपीसी का जो करना है, CSR हो, सोशल हो, जो भी है वो सब मेरा देखना काम है। मेरा एम्प्लॉय का खुशहाली देखना काम है, यही मेरा मेन काम है। प्लांट का जो भी होगा वो ना हेल्थ देखते हैं, उसमें ज़्यादा मैं इंटरव्यू नहीं हॉस्पिटल जो है वो पुराना है, वो भी लोकप्रिय हॉस्पिटल हुआ करता था। क्या फिर से उसको उसी प्रकार विकसित करने के लिए कोई योजना है?
वर्तमान में जैसा आपने पहले भी कहा कि एनटीपीसी हॉस्पिटल पहले काफ़ी विकसित था, विकसित आज भी है, ऐसा नहीं कि विकसित नहीं है, आज भी विकसित है। उसका कारण ये था कि कोरबा में एकमात्र ऐसा चिकित्सालय हुआ करता था। आज के समय में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, हर क्षेत्र विकास कर रहा है और कोरबा भी उसी राह पर चलते हुए विकास कर रहा है। तो स्वास्थ्य सेवा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। एक समय था कि लोगों की डिपेंडेंसी जो थी वो कोरबा हॉस्पिटल के लिए हुआ करती थी। तो जहाँ तक सवाल है आपकी सुविधाओं के लिए आपने कहा, तो एनटीपीसी हॉस्पिटल में लगभग वो सुविधाएं उपलब्ध है जिन सुविधाओं की जरूरत है। पहली तो सर पहला तो ये है कि हम किसी हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं करते अपने आप को। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी सुविधाएं हैं हम बेहतर तरीके से उसको दे सकें। तो हमने हमारे यहाँ जिस तरीके की स्पेशलिटी है, जो विशेषज्ञ है हमारे हॉस्पिटल में, उस क्षेत्र में आपको लगभग सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ये हमारा उद्देश्य रहा है कि बेहतर सुविधा आसपास के लोगों को, अपने कर्मचारियों और हमारे एसोसिएट्स को। सर ये एनटीपीसी के जो लेबर ग्रेड के लोग हैं, लेबर हैं सर, उनको लेकर के पूरा जुलूस निकला था एनटीपीसी से पैदल, और वो आया था कलेक्टर को ज्ञापन देने। जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे एनटीपीसी प्लांट के अंदर, उनकी मनमानी को लेकर के जिस तरह से आरोप उन्होंने एनटीपीसी अधिकारियों पे लगाया, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। उन्होंने ज्ञापन दिया है सर, तो क्या इसमें सुधार होगा या आप लोग ध्यान देंगे? FIR की हुई है। इसमें मैं सबसे सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की बात है, एनटीपीसी उनके संबंध में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और विभिन्न जो श्रम कानून है उसके अंतर्गत जो हमारी जिम्मेवारी होती है ये सुनिश्चित करने की होती है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट के अंतर्गत, कि हम उनके अटेंडेंस है उसके हिसाब से जो उनकी सैलरी बनती है उसको एसो कॉन्ट्रैक्टर उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाएगा। तो वो उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच रहा है जो भी उनकी मासिक सैलरी है। केवल वही नहीं, हमारा एक HR क्लियरेंस प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर जो अपना बिल सबमिट कर रहा है वो पेमेंट होने के पहले HR के पास आता है और HR उसमें ये सारी चीज़ों को चेक करता है कि आपने जितना उसका अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी बनाया है वो लेबर के अकाउंट में पेमेंट हुआ है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, साथ ही PF और ESI जो रेमिटेशन होना है वो किया गया है कि नहीं, वो चेकिंग के बाद ही है वो पेमेंट किया जाता है। ऐसा सूचना हमें भी मिला है जो आप बता रहे हैं। तो वो जो हमारा है ना कार्य क्षेत्र के बाहर आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि वो जो उनका सैलरी है वो उनके अकाउंट में जा रहा है, वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके अलावा जो है कि क्या है वो तो फिर जैसा आपने बताया कि FIR भी हुआ है, तो उसमें पुलिस का जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उन लोग का उचित कार्रवाई करेंगे। उसमें जो हम लोग से सहयोग मांगेंगे, जो भी उन लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा उसमें। सर ग्रीन एनर्जी की तरफ भी आप लोगों को कोई प्लान है क्या? अभी तक सर कोयला आधारित पावर प्लांट ही एकमात्र विकल्प है देश में, तो बीच में ऐसी खबर आई थी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ एनटीपीसी कदम बढ़ाएगा, तो सोलर पावर प्लांट का कोई प्लान है आप लोगों का? और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कहीं सोलर पावर प्लांट क्या आप लोगों ने स्थापित किया है? सोलर जो है ग्रीन एनर्जी में माना जाता है, उसका यूनिट अलग है, वो अलग देखता है। एनटीपीसी का कोई प्लान है कि इस दिशा में ये? हाँ यस, हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर 60 गीगावाट का प्लान है 2032 तक इंस्टॉलेशन। जैसे कोई शिकायत है तो एक तो हमारे जो गेट्स हैं ना उसके ऊपर शिकायत बॉक्स लगा हुआ है, आप वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अपना जिला के में आप लोग जो शिकायत करते हैं तो वो शिकायतें हम लोगों के पास इमीडिएटली आती है और 2 से 3 दिनों के भीतर उसका जवाब दिया जाता है। तो ये 2 माध्यम है जिससे आप अपना शिकायत हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शशांक, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस, कैन यू प्लीज टेल अस किस स्टेज तक गया है? वो क्या है, वो हम लोग ऐसा नगर निगम के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने उनके साथ MOU किया है
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नगर निगम है। उसका स्टेटस जो जानकारी है हमारे साथ तो वो बता रहे हैं, बट एक्चुअल जानकारी लेटेस्ट क्या है वो नगर निगम ही बता पाएंगे। फिर भी मैं शशांक से आग्रह करता हूँ आप बताऊँ। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया दर्रे में और ये 2 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। कोरबा का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है 33 MLD का है। रेट फाइनल हो गया है ना, कितना रुपए किलो में पानी खरीदेंगे आप लोग? सर जैसे आप लोग CSR का पैसा देते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कि पैसा दे के भूल जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है इनका एक क्वेश्चन आया, मैं इसको आंसर करने की कोशिश कर। अब मेरा ट्रेन वाला नहीं बताए सर, ट्रेन वाला जो आपका इलेक्ट्रिक और कोयले से चलता है, डीजल से। ठीक है, एनटीपीसी के जो नॉर्म्स है प्रैक्टिसेस है उसके अलग हिसाब से हमारा जो MGR लाइन है, इसको हम लोग मेरी गो राउंड लाइन बोलते हैं। वो MGR लाइन जो वो डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है, लिमिटेड लेंथ का होता है। एनटीपीसी के सारे प्रोजेक्ट में उसकी अपनी डीजल इंजन और उसी से उसको प्रचालन किया जाता है। तो एनटीपीसी में सभी जगह ऐसा ही है कि डीजल इंजन के माध्यम से। सर देश के प्रधानमंत्री सारे बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं ट्रेन को, तो ये कहाँ क्यों नहीं? ठीक है, केंद्र सरकार आपको ये बताना चाहता हूँ, वो सरकारी रेल लाइन नहीं है, वो प्राइवेट रेल लाइन आप कह सकते हैं उसको। उसका जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का रेलवे लाइन जो है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम लोगों का एक प्राइवेट एंटिटी का डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर है जो सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कोई नहीं कर सकता। CSR वाला सर, CSR वाला CSR वाला एक मिनट इनका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। आप लगता है बहुत पुरानी बात बता रहे थे, हमारा भी ऐसा कुछ अनुभव रहा है, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जितने भी समझौता कर रहे हैं ना वो त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें हम कलेक्टर कार्यालय को भी इसमें एक साइनिंग अथॉरिटी बनाते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है और पेमेंट शेड्यूल होता है। वन टाइम पेमेंट नहीं करते हम लोग। जनरली जो सरकार का पेमेंट शेड्यूल होता है इस तरह के डिपॉजिटरी वर्क में 40-40-20 करके होता है। तो विभिन्न कार्य के कंप्लीशन के आधार पे ही वो पेमेंट होना है, जो मैंने आपको बताया। एक सेफ गार्ड हुआ। दूसरा सेफ गार्ड ये है कि इसमें हम जिला प्रशासन को भी शामिल कर रहे हैं। तो आप जो शंका जाहिर कर रहे हैं अभी वैसी वस्तु गाड़ी में जो युद्ध चल रहा है अगर वो लंबा है तो क्या सर एनटीपीसी में के प्रभाव आगे पड़ सकते हैं? मैं चाहूँगा कि अन्य जो यहाँ पे वो भी कुछ क्वेश्चन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि जैसे मंदिरों से भगवान दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर से बाहर निकल लोगों का हालचाल जाते हैं। उसी तरीके से आप लोग भी हालचाल करने आए हैं, लेकिन अधिकांश अभी तक जनता लेकिन ये भगवान यहाँ से जाने के बाद उसी तरीके से मंदिर में भगवान की मूर्त बन के बैठ जाए और कोई चीज़ सुनेंगे नहीं। किसी से मिलना हो तो बड़ा दुआर हो जाएगा। इतनी सारी बातें आप लोगों ने बताई। मैं ये बोलूँगा कि मोदी जी का वोकल फॉर लोकल आपने पेटीकोट सिलाई की मशीन लगवा दी, एनटीपीसी पेटीकोट को नहीं खरीदे, दोनों पत्थर का लगा दिया, एनटीपीसी को नहीं खरीदेगा, मार्केट नहीं को खरीदेगा। लेकिन आपको समझे कि यहाँ जो सारे उद्योग जिनकी बहुत से प्रोडक्ट एनटीपीसी ले सकता है, लेकिन उसके लिए स्थानीय स्तर पर इन पत्थर की मूर्त बने भगवानों को अगर आप छोटे उद्योगों को प्रमोट करेंगे तो जो हर अपने उद्योग में 10-20 लोगों को रोजगार देते हैं तो कम से कम सहूलियत होगी वहाँ। इसके लिए या तो कोई सेल बनाइए। स्थानीय यहाँ के उद्योग वालों की खास शिकायत है, यहाँ के उद्योग वाले मांग रहे हैं कि यूनियन की पंचायत बन के क्या करें जब आप वहाँ किसी चैम्बर में बैठ के किसी की बात को सुनते नहीं। आपने जो भी भूमिका बताया, मेन क्वेश्चन ये है कि आप लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है आपके बंद हो रहे हैं तो अगर आप प्रमोट करेंगे तो इसीलिए उस परिवारों को जी। तो हम लोग जो CSR कार्यक्रम करते हैं ना, तो CSR कार्यक्रम कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 7 में डिफाइंड है कि आप क्या क्या कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग उसके रेफरेंस में कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है,
साथ ही जो लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने बोल रहे हैं, तो ऐसा जैसे वो शेयर कर रहे थे शशांक, ये दोना पत्तल वाला जो है ना, दोना पत्तल को हमने केवल प्रोडक्शन इंश्योर नहीं किया, हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें वही दोना पत्तल यूज़ किया जाए, जहाँ जहाँ भी यूज़ हो सकता है। नहीं, आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री है पूरा एनटीपीसी कंज्यूम कर लेगा, ओनली टू द एक्सटेंट जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसमें हम लोग डेफिनेटली उसका ध्यान रखेंगे। जी, अच्छा सुझाव है आपका। एक इनका भी सुन लो। अच्छा सुझाव है आपका, ध्यान रखेंगे। मेरा 2 सवाल है। आपके एनटीपीसी अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय है, उसमें वीआईपी कल्चर क्यों? दूसरा, इस कोरबा जिले के मतलब उसी में है, कोरबा जिले के उन बच्चों को उसमें एजुकेशन क्यों नहीं मिलता है जो बीपीएल कार्डधारी हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि ई वॉइस कोचिंग सेंटर जो आप लोग चलाते हैं एनटीपीसी के अंतर्गत, वो कोरबा जिले को क्यों नहीं मिलता है पूरा? ठीक है, एडमिशन केवी में एडमिशन के संबंधित आपने प्रश्न उठाया। आप सबों को इस मंच के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये स्कूल जो है केवी, ठीक है, हम लोगों ने उसको अपने यहाँ पे जगह दिया, स्थापना किया है और वो चला रहे हैं, बट उनका जहाँ तक एडमिशन का क्वेश्चन आ रहा है, उनकी अपनी एडमिशन गाइडलाइन है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है और उनका अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन गाइडलाइन है जो प्रत्येक वर्ष उनको जारी किया जाता है और उसमें बच्चों का एडमिशन का एक प्राथमिकता दिया हुआ है कि किस टाइप के बच्चों को पहली वरीयता मिलेगी, फिर दूसरी वरीयता मिलेगी, तीसरी वरीयता मिलेगी। तो उस वरीयता से उनका एडमिशन रेगुलेट होता है और इसमें हमारा कोई से नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। वो कोचिंग सेंटर का जवाब दे दीजिएगा कि आखिर जिले वासियों को, जिले के जो बच्चे हैं उनको क्या उस कोचिंग सेंटर का लाभ मिलेगा? ठीक है, ये बता रहा है, इट इज़ अ टेस्टिमोनियल कि हमने जो प्रयास किया वो सफल है, क्योंकि आप उसको लार्जर स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। हमारा जो ये था कि हम लोग के स्टेडियम में वो बच्चे दौड़ने आते थे, तो कुछ लोगों ने देखा, मैं भी जाता था वहाँ पे, कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ये पाया कि इन फिजिकल में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज उनको ट्रेन पर्सन से फिजिकल की तैयारी नहीं कराए हैं और रिटर्न का तो उनको समस्या है ही। तो हम लोगों ने फिजिकल के लिए भी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल एंड CISF के सहयोग से, बिकॉज उनका फिजिकल का तैयारी चलता रहता है, उनके सहयोग से उनको फिजिकल भी तैयारी कराई, रिटर्न की भी तैयारी कराई। धन्यवाद सर। इस बार हम लोगों ने ज़्यादा बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया है, वो अलग अलग जगहों से आए हैं और जैसा इसका सफल रहेगा तो हम लोग इसको लार्जर स्केल पे डेफिनेटली ले जाएंगे। धन्यवाद सर। और कोई विशेष? नहीं, कुछ नहीं, संवाद बढ़िया।